حضرت خواجہ انیس محمد برکت علی مینیفیسٹیشن آف دا اسٹیج آف بلیسنگ دا ورڈ آف دا وزڈم والیوم 9 کے اندر فرماتے ہیں ہی میڈ دی مین، اس نے جو ہے وہ آدمی کو بنایا. ہی کا مطلب اللہ تعالیٰ. یہاں پہ ایچ ہی جو ہے وہ بڑا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صرف بڑی ہے، باقی سب چھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سے ظاہر کیا گیا ہے. 6764 کے اندر یہ ایبریویشن ہے. 31 پیج پہ یہ ہے دا مین، انسان کو بنایا، آدمی کو بنایا. ان ہز اون امیج، اپنے نقشے پہ، اپنی مشابت پہ. ان ہز اون امیج، اپنے نقشے پہ، اپنے مشابت پہ. دس از ہز امیج. یہ اس کی جو ہے وہ تشبیہ ہے. امیج بھی تشبیہ، امیج بھی نقشہ، اپنے نقشے پہ بنایا. یہ اس کی تشبیہ ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں حبل المرید ہوں اور میری روح انسان کے اندر ہے. تو جب اللہ کی روح انسان کے اندر ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے نقشے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. He made everything for you. اور پھر کیا کیا جی؟ ہر چیز تمہارے لیے بنا دی. یعنی کہ انسان کے لیے اس نے ہر چیز پیدا کر دی. He keeps on with the management day and night. اور ان کا انتظام، انصاف اور نظم و ضبط جو ہے یہ تنظیم کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ صبح و شام وہ کرتا ہے. وہ صبح و شام ان کا جو مینجمنٹ کرتا ہے، ان کی جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے. اور اس کی مینجمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، تنظیم میں کوئی فرق نہیں ہے. انتظام جو ہے اس کا جو ہے اس نے سنبھالا ہوا ہے صبح و شام. تمام دنیا کا، انسان کا، حیوان کا، چند کا، پرند کا، پلانٹس کا، ہر چیز کا نظام جو ہے وہ اللہ نے کل فیکون کہہ کے جو ہے بنا دیا ہے. He is not the perfection. کیا یہ مکمل نہیں ہے؟ پرفیکٹ نہیں ہے؟ درست نہیں ہے؟ What is else is this؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو بتا دیں. It is the God's blessing. It is everything with the God's. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی عنایت ہے اور یہ ایک مکمل نظام تنظیم کے ساتھ چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ چلا سکتا ہے اس انتظام کو؟ اس نظم و ضبط کے ساتھ چلا سکتا ہے؟ قائد اعظم کا فرمان ہے اتحاد، ایمان اور تنظیم. تو تنظیم جو ہے، نظم و ضبط جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہترین نظام ہے. دیکھیں صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے اور شام کو چاند آ جاتا ہے. تو یہ زمین اور آسمان گردش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا بہترین شکل میں، اپنے امیج کے طور پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے اپنے امیج کے طور پہ. اللہ تعالیٰ کی شکل جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی شبیہ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے انسان کے روح کے اندر، انسانیت کے اندر. جو انسان جو ہے وہ اچھا انسان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی شبیہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر موجود ہے تو پھر اس سے اور بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پہ جو ہے وہ، اپنی مشابت کے طور پہ جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ ہم اس آل تھنگس آر پرفیکٹ. آسمان کو اوپر
सारा कुछ अल्लाह तआला, जमीन को जो है या लाए रब्बी कुमार तर्जुमान, कौन कौन सी निमत को जुटलाओगे, तफक्करून ताफिलून तकफुरून, और ये जो है वो कलून तामलून, ये जो है ये तुम्हारे लिए नई दुनिया मिलती है, कोलंबस को नई दुनिया मिलती है, ढूंढने वालों को नई दुनिया मिलती है। तो जो लोग तलाश करते हैं उनकी जो है ये हर चीज मिल जाती है। आप दिल से जो है वो अपने अंदर उमंग पैदा करें, इल्म हासिल करने की, जानने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे और वो राज बता देंगे जो नहीं जानते, वो अलाज बता देंगे जो नहीं जानते। तो इस तरीके से आज की बात जो है हम करने के बाद एक स्टडी हम आज जो है वो करेंगे, स्टडी को डिस्कस कर लेंगे। अगर डॉक्टर साहब इजाजत देंगे तो ये ऐसे होती तो मुश्किल चीजें हैं, रिसर्च एंड प्रैक्टिस, तो हम इसको जो है कभी कभी इसको डिस्कस कर लिया करेंगे ताकि जो है ये हमें हमारे नॉलेज में हमारे, ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है ये जितने भी आर्टिकल होते हैं, और लेकिन हमारे जो ग्रेजुएट्स हजरात है उनके लिए भी ये एक मसले रहा होता है ताकि हम पब्लिक हेल्थ अमेरिकन जनरल मुख्तलिफ आर्टिकल जो होते हैं आप उनको जो है पेश करने की कोशिश करेंगे उर्दू जुबान में, ताकि जो हमारे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको भी समझ आ जाए, यानी कि और ग्रेजुएट्स को भी समझ आने की कोशिश करें, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये रहा है और बहुत मुफीद है ताकि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हजरात को ये समझ सकेंगे बड़ी आसानी। लेकिन हमारे जो ग्रेजुएट्स और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको समझने में ये, क्योंकि आर्टिकल ऐसे होते हैं इंटरनेशनल आर्टिकल, इनको समझना जो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में हम कोशिश करेंगे अपने तो बड़ी आसानी। तो उसका दिया हुआ है प्रोजेक्ट ओसीडी की जो प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने दी हुई है ताकि जो है उसका उर्दू तर्जुमा जो है करके हम जो है पेश कर सके आपके लिए। और पर्सनैलिटी के मतलब जो है कुछ आर्टिकल मेरे पास मौजूद है, वो भी जो है वो उर्दू तर्जुमे के साथ जो है पर्सनैलिटी जो है वो क्या होती है, पर्सोना क्या होता है, हम जो है किसी से उसकी आवाज से, उसके बैठने उठने के अंदाज से, उसके सोने के अंदाज से, उसको देखने के अंदाज से हमें पता चल जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है, गुस्से वाली है, मोहब्बत वाली है, मज़ाक वाली है, या किसकी पर्सनैलिटी जो है ये गुरूर वाली है, तकब्बुर वाली है, किस किस्म की है। तो हम उसके सोने के अंदाज से, उसके बैठने के अंदाज से, उसके हाथों से, उसकी जो है मुस्कुराहट से, उसके चेहरे के खद्दो खाल से, उसके बालों के खद्दो खाल से, तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से उसकी पर्सनैलिटी को पहचान सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिसर्च एंड प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा है कि रिसर्च अमेरिकन पब्लिक हेल्थ जर्नल जो है इससे लिया प्रोबेबिलिटी, सबसे हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द obese person attending the normal body weight part study using the electronic health records। तो ये इसका थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वहाँ पे जो है हर मरीज को जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका जो है सबसे पहले नेम, वल्दियत, उसके बाद ये जितने भी जो मैंने कल जो है वो आपको एक बात बताई थी मेडिकल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हर चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती है। तो इसमें जो है ये तमाम मरीज का जो है वो शुरू से लेके जो है वो वेट, हाइट, उसके बाद जो है वो उसकी जो पर्सनैलिटी की भी हमने बात की वो, और उसके बाद जो एड्रेस और उसको हेल्थ प्रॉब्लम जो है डायग्नोज किया कि आपने इसलिए हमारे पास किस हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आया, और ये सारा जो है वो उसका बायोडाटा कंप्यूटराइज किया जाता है, और कंप्यूटर में आप जब मर्जी जाए क्लिक करके जो है उसका पूरा बायोडाटा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो obese पर्सन जो है, obese का मतलब होता है मोटापा,
और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये स्टैटिकल एक टर्म है, स्टैटिकल टर्म है, इसमें जो है होते हैं कि शुमारियात की ये टर्म है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ चांसेस जो है वो क्या है, उसके आने के चांसेस क्या है, यानी कि मोटापा होने के चांसेस क्या है। इसका मतलब यह है कि एक पर्सन जो नॉर्मल गजा खा रहा है हमारे पास आता है ओबीस के सिलसिले में, तो उसमें जो है उसके वेट के हिसाब से जो है वो वेट के हिसाब से हम जो उसके वो मोटा है या कि नहीं मोटा, उसके अंदर जो मोटापा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये जो है स्टडी जो है वो कार्ड स्टडी के अंदर जो है वो की गई। हमने मुख्तलिफ जो है कार्ड, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी डेथ होती है डायबिटीज की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से या किसी और वजह से, उसका जो है रिकॉर्ड जो है हमारे हॉस्पिटल के अंदर जाइए 1934 से लेके जो है वो अब तक मौजूद है, 2023 तक जो है 1934 से लेके 2023 तक हर मरीज का रिकॉर्ड जो मौजूद है। जितने भी सर्जन जो आते हैं मतलब कि जो है वो किसी भी पीरियड का ले लेते हैं रिकॉर्ड, इकोनॉमिक्स वाले आते हैं, हमारे तो वो सर्जन जो आते ही नहीं है, मतलब वो तो उनकी स्टडीज तो पता नहीं कहाँ पे वो ऊंची स्टडी करते हैं, मतलब बीएमएस वाले या हमारे एमफिल और पीएचडी वाले जो है। तो जो दूसरे एजुकेशन के जो है वो आते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज के आते हैं, तो उनको मैं रिकॉर्ड जो है निकाल के देता हूँ। तो हार्ट अटैक से कितने मरीज जो है वो फौत हुए हैं, और उसके बाद जो है डायबिटीज से कितने मरीज फौत हुए हैं, और इस तरह की वो स्टडी करके जो है इस तरह से एमफिल और पीएचडी को कंप्लीट कर लेते हैं इकोनॉमिक्स वाले। और इसी तरीके से ये जो दीगर जो है महकमों वाले जो है ये न्यूट्रिशन वाले और दीगर जितने भी जो है वो एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, तो वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर आके हम रिकॉर्ड रूम हमारा मौजूद है, वहाँ से जो भी वो पीरियड चाहते हैं हम जो 2 साल की स्टडी, 4 साल की स्टडी, वो मेरी यूनिवर्सिटीज की बेटियाँ आती हैं तो उनको भी मैं हेल्प करता हूँ जो भी मेरे जो है। और इसी तरीके से बहुत से ऐसे जो है ये फातिमा वार्ड वाले पेशेंट आते हैं, बच्चों वाले जो है लोग आते हैं वहाँ पे जो है बच्चों की स्टडी करने के लिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लोग आते हैं, तो इस तरीके से वो स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है असल में होता ये है कि वहाँ पे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है। हमारे जो है ये मैनुअल रिकॉर्ड था, अब उसको हमने कंप्यूटराइज तमाम वार्ड के अंदर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड अब कर दिया गया है, जिसको हम जो है आप आसानी से जब आपका दिल चाहे किसी भी मर्ज के बारे में आप जो है वो मतलब कि डायरिया के बारे में आप जानना चाहते हैं, कितने मरीज जो है डायरिया क्या है और उसकी डेथ कैसे हुई, और जो है इस तरह से जो है वो तमाम रिकॉर्ड अब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जैसे कि इंटरनेशनल तौर पे हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल लाइट हॉस्पिटल 2 के अंदर भी ऐसे ही जो है वो इसको जो है इंटरनेशनल तौर पे जो है ये बना दिया गया है। और तमाम रिकॉर्ड जो है ये जितनी भी डेथ होती है, जितने भी मर्जों के मतलब जो है वो आते हैं, तो हम उसको जो है इसी तरीका से जाइए हम इसको जो है अब रिकॉर्ड करके जो है सेक्रेटरी हेल्थ को और दीगर जो है हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हेल्थ की जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं। डीएमएसआई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो उसको हम भेजते हैं। इसी तरीका से जो है वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब को भेजते हैं और सेक्रेटरी हेल्थ को भेजते हैं, प्राइमरी हेल्थ को भेजते हैं। ये सारे रिकॉर्ड जो है ये हमारे जाते हैं वहाँ पे, और इसकी वजह से जो है तमाम काम जो होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। तो वेट आपको पता है वजन को कहते हैं जी, ओबीस मोटापे को कहते हैं जी। तो इस तरीके से ये स्टडी की गई। इस स्टडी के अंदर जो है इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि हम जो है वो एग्जामिन कर सके प्रोबेबिलिटी को, यानी कि उसकी जो है वो किसी भी मोटापे की जो है आने के किसी भी नॉर्मल वेट वाले वजन
नॉर्मल के अंदर किया गया। इसको चाहिए मुख्तलिफ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यूनाइटेड इसका रिकॉर्ड लिया गया, इसको इस्तेमाल किया गया और 2004 से लेकर जो है 2014 तक का रिकॉर्ड जो है वो इसको मद्देनजर रखा गया कि इसमें जो है वो कितनी औरतें, कितने जो है वो मर्द, कितनी बच्चे और जितनी बच्चियां जो है वो आई, उनको जो है जो और मर्दों वाले थे उनको निकाल दिया गया और बाकी जो है मोटापे वाले केस जो है उनका जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स को जो है वो नोट किया गया, यानी कि जो है वो बेसिक मास इंडेक्स को नोट किया गया। मेटाबॉलिक के मास को एक ही बात है जी, बीएमआई का नोट किया गया और उसके बाद जब बीएमआई से जो है वो हमने उनका नतीजा हासिल किया कि ये इस तरीके से अगर जो है वो इतना बीएमआई हो तो हम जो है ये कह सकते हैं ये मोटापा जो है वो है। इसमें जो है वो वेट और हाइट को दो को चाहिए मद्देनजर रखा जाता है, वेट ओवर हाइट करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, तो इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई जो है इसकी मदद से जो है हमने इसको जो है नोट किया और इसकी प्रोबेबिलिटी नोट की। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने हाइपोथेसिस लिया कि इतने परसेंट जो है वो अगर होंगे तो ये जो है मोटापे की तरफ माइल होंगे, इतने परसेंट अगर होंगे तो हमने जो नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं, वो हाइपोथेसिस देते हैं पॉजिटिव हाइपोथेसिस। होता है कि इसमें जो है वो नहीं है और का मतलब होता है कि ये है। तो इस तरीके से जो है ये हमने उसकी जो प्रोबेबिलिटी को नोट किया, मतलब नंबर ऑफ चांसेस जो है वो किसी चीज के होने को जो है उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 100 डालने के चांसेस जो है वो 1/2 होते हैं। इसी तरह से जो है वो हम जब किसी भी डाई को जो है डाई को कहते हैं हम उर्दू जुबान में, उसको हम जब जो है वो डालते हैं तो उसमें 1/6 चांस जो है वो किसी भी नंबर आने के होते हैं, तो इसको जो है प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसने नोट किया तो आखिर में जो है ये हमने स्टडी की, मेथड ऑफ स्टडी ये था कि हमने यूके के जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस सर्च डाटा मार्क्स से 2004 से लेके जो है 2014 तक के मरीज जो थे उनमें जो है ये 76,704 मरीज जो है वो हमने उनका डाटा लिया और डाटा लेने के बाद हमने जो है इनमें से जो है वो जाना कि तकरीबन 12 जो है वो मैन और 2245 जो है वो वुमेन जो है मोटापे की तरफ जो है वो वेट की वजह से जो है वो माइल ज्यादा हुई। इसके अलावा जितने भी जो है ये एक से लेके 677 तक जो है ये वुमेन जो है ये इस डाटे के अंदर जो हमें महसूस हुआ कि ये इनमें जो मॉर्बिड यानी कि दरमियाने दर्जे की ऑब्सिटी जो है पाई जाती है, यानी कि मोटापा जो है मोटापे की तरफ जाना है। तो इनका जो है जो दरमियाने दर्जे की जो है वो उनका बीएमआई जो है ये था 30 से लेके जो है वो 34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है वो हम बीएमआई को जो है वेट और हाइट से जो है वो पर मीटर स्क्वायर में जाहिर करते हैं। पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये जो है वो किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर हाइट इन द मीटर। तो इसमें जो है वो इसको जो है वो बॉडी मास जो है वो इंडेक्स कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल होता है वो 0 से लेकर 20 तक होता है, 23 तक होता है। तो अगर इससे बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये मोटापे की तरफ माइल है। तो ये जो बॉडी मास 30 जो है ये इसमें जो है हमने 30 से 34 तक जो है यानी कि ये जो है बिल्कुल माइल्ड, ये थोड़ा सा जो है वो और मॉडरेट इससे थोड़ा सा ज्यादा। तो दूसरे नंबर पे हमने जब इनका दूसरों को तजुर्बा किया तो उसमें 40 से लेके जो है 44 तक जो है किलोग्राम जो है वो पर मीटर स्क्वायर जो है इस तरीके से इसका बॉडी मास जो है वो आया बीएमआई आई। तो इसमें जो है वो 5% वेट जो है वो रिड्यूस करने के बाद जो है वो 1 to 8 जो है 1 in मेल इन 8 मैन और 1 in 7 वुमेन जो है ये मॉर्बिड ऑब्सिटी जो है वो पाई गई। तो इसमें जो है वो कम हो गई जब हमने उनको वर्जिश वगैरह करवाई और इस तरीके से जो है ये उनकी डाइट को कंट्रोल किया
तो इस तरीका से हमने ये कंक्लूजन निकाला, हम एक जो है नतीजा अखद किया कि ये जो है प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ द अटेनिंग नॉर्मल वेट, जिसमें नॉर्मल वेट के जो पर्सन होते हैं मेंटेन द वेट ऑफ द मैनेजमेंट, वो अपनी मैनेजमेंट जो है वो इंतजाम को जो है वो बेहतर कर लेते हैं। और जो है ये जब अभी उनके अंदर जो मैनेजमेंट अभी अपने इंतजाम और नज़्म तंजीम के साथ जब वो खाना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को नज़्म ज़ब्त के साथ गुजारना शुरू कर देते हैं और सैर करते हैं, वर्जिश करते हैं, अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं, मुनासिब खुराक खाते हैं, तो उनके अंदर ऑब्सिटी का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जो है उसमें जो है वो मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है मे बी इनफेक्टिव। तो इसमें जो है ये हम कह सकते हैं कि ये ये इस किस्म के प्रोग्राम जो है बाद इनफेक्टिव हो जाते हैं। अगर आप जो है वो इसको फ्रेमवर्क को जो है वो प्रॉपर जो है वो कम्युनिटी के अंदर बेस्ड रेट जो है वो मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ जो है वो करें, तो उसकी वजह से जो है वो वेट लॉस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कम होगा और उसमें जो है वो मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी और जिसकी वजह से वो अपने वजन को जो है वो मेंटेन रख सकेंगे। वजन के साथ साथ उनकी जो है मोटापा भी जो है वो कम हो जाएगा और उनकी हाइट जो है वो नॉर्मल तरीके से बढ़नी शुरू हो जाएगी। असल में क्या है, असल में उनकी स्टडी अभी है तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टडी जो है वो आज से 1400 साल पहले थी ये स्टडी कि जो है जब इंसान जो है वो अपने आप को नज़्म ज़ब्त के साथ जो है वो अपनी खुराक को अपने हर चीज को नज़्म ज़ब्त के साथ चलाता है, यानी कि सैर करता है, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर रखता है, खाने के स्टाइल को बेहतर करता है और इस तरीके से जो है जब डे एंड नाइट जैसे चलते हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है। जितने घंटे उसे रेस्ट करनी है उतने घंटे वो रेस्ट करता है, तो वो जो है वो कामयाब तरीके से वो जिंदगी गुजारता है। तो इन्होंने जो है सैंपल सिलेक्शन कैसे की, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जी। मेथड इन्होंने क्या इस्तेमाल किया ये मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वहां से इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, उसमें वुमेन और मेन और उसके बाद चिल्ड्रन और उसके बाद जो है ये फीमेल चाइल्ड जो है शामिल थे। तो उन्होंने जो है इसमें जो है उन्होंने कहा कि जो हंगर वाले हैं वो रिसर्च इज द पार्ट ऑफ लार्जर स्टडी, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है लार्जर स्टडीज में जो है शामिल थी टू एवेल्युएट द ब्रेसिक सर्जरी। उसमें जो है वो हमने जो जिनकी सर्जरी अगर करें वो ब्रेसिक सर्जरी ये होती है कि उसमें जो है वो एक रिंग जो है रख दिया जाता है जिसकी वजह से बेटा अपना वर्क जो है वो काम करना शुरू कर देता है और ब्रेसिक स्टडी वालों को उन्होंने वैसे जो है वो कबूल नहीं किया। तो इस तरीके से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए जी। एक 2004 से लेके जो है वो 31 अक्टूबर जो है 2014 तक उन्होंने सैंपल जो है वो कलेक्ट किए, यानी कि 20 साल का एक डाटा जो है वो सॉरी 10 साल का एक डाटा जो है लिया जिनकी उम्र जो है 20 साल थी। तो इस तरीके से इनका जो है वो BMI रिकॉर्ड जो है वो रखा गया और जिसकी वजह से जो है इनको इनकी स्टडी जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस सर्च जो है वो डाटा लिंक के ऊपर जो है इनकी स्टडी की गई और जिसमें वेट और जो है वो बॉडी मास को जो है वो रखा गया। तो इस तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकॉर्ड रिसर्च जो है वो डाटा लिंक के साथ जो है 20 साल की उम्र के जितने भी लोग थे उसमें जो है 3.7 बिलियन लोगों को जो है वो इस पीरियड के अंदर लोगों ने इलाज करवाया और आए। इसमें जो है 7.1 मिलियन लोग जो है वो जिनको जो है वो दूसरे किस्म के जो है प्रेस्क्राइब किए गए और इस तरह से क्लासिफाइड किए गए। तो BMI जो है ये फर्स्ट रिकॉर्ड मुताबिक जो है 6 कैटेगरी के अंदर जो है ये 18.5 से लेकर 24.9 रहा, जिसमें जो है वो नॉर्मल वेट के हिसाब से जो हम कवर करते हैं। तो ओवर वेट में जो है 30 से 34 तक अभी हमने पहले भी बात की, जो हमने इसका कंक्लूजन के अंदर जो है बात की। तो इनको जो फिर उन्होंने एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे किया, अक्टूबर नवंबर 2024 से लेके जो है ये आगे जो है इन्होंने अक्टूबर 31 जो है 2014 तक के रिकॉर्ड को जो है उनके सबके BMI जो है लिए और इस तरीके से जो है ये इन्होंने सबसे पहले जो है एज फैक्टर लिया।
एज को भी जो उन्होंने जो है ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है कि ये मतलब 58 प्लस माइनस का मतलब 18। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ BMI रिकॉर्ड। तो इसके बाद जो है all records shows the change in the category परसेंटेज में कितनी चली आई। इसमें जो है वो किसी का वेट बढ़ा किसी का कम हुआ, लेकिन जिन्होंने मैनेजमेंट के अंदर खुराक खाई, नॉर्मल खुराक खाई, अपने जिस्म का जो नज़्म ज़ब्त के साथ जो है वो ख्याल रखा और उनके जो है वेट के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, वो नॉर्मल वेट के अंदर रहे। और जिन्होंने जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपने आप को सुस्ती ज़ाहिर की और मुकम्मल खुराक जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक मैनेजमेंट के मुताबिक नहीं खाई, तो उनमें जो है वो अपनी जिंदगी को ऐसे ना गुजारा, तो उनके में थोड़ी सी जो ओबेसिटी को पैदा हुई। और जिन्होंने रज के खाया और दब के भाया, तो वो जो है वो उनके अंदर जो है ये ज्यादा से ज्यादा ओबेसिटी के जो चांसेस जो है पैदा हुए। इस स्टडी से ये साबित होता है, इसमें जो रिजल्ट आए जी तकरीबन जो है ये 27,08,952 लोगों को जो है ये देखा गया। उसमें से जो 12,09,194 मैन थे और 14,09,788 वुमेन थी, जिनमें वुमेन चाइल्ड और जो मेल चाइल्ड भी शामिल थे, जिसमें जो 20 साल के बच्चे जो उनको शामिल किया गया और बाकी लोगों को जो है 20 साल की औरतों और जो है 20 साल के मर्दों को शामिल किया गया, बाकियों का एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि उनका डाटा ही जो है वो खत्म कर दिया गया। तो BMI जो है वो टेबल के मुताबिक अभी हमने बात की, ये टेबल को मैं डिस्कस कर रहा था, तो इसमें जो है मेरे दोस्तों को थोड़ा बहुत शायद समझ आ गया हो कि मैन का जो है वो किलोग्राम के अंदर वेट पर जो है वो मीटर स्क्वायर के मुताबिक और वुमेन जो है ये जितना है, और टोटल जो है वो BMI को रिकॉर्ड किया गया। और IQR का मतलब है एंट्रोपाइट रेट और NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल ऑफ द हाइट हाईएस्ट BMI जो है कैटेगरी, इसको जो है हमने निकाल दिया। तो इस तरीका से जो है ये टोटल हमने जो है वो किया। तो डिस्कशन के अंदर जो है कि हम ये कह सकते हैं कि हम डिस्कशन जो है एनालिसिस ऑफ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ये हमें लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो है जो सैंपल हमने कलेक्ट किए इसमें से 9 साल के पीरियड के अंदर ये इनकी प्रोबेबिलिटी जो है ओबीज की जो है यानी मोटापे की जो प्रोबेबिलिटी जो है ये इसमें जो है वो बहुत कम पाई गई उन लोगों के अंदर जिन्होंने जो है बड़ी सैंपल गजा खाई और बड़ी आसानी से जो है वो अपने वजन को जो है वो नॉर्मल रखा। और दूसरे नंबर पे जो है जिन्होंने अच्छी और तेज गजा खाई और वर्जिश वगैरह नहीं की, तो उनका जो है वो BMI जो है वो ज़्यादा हो गया। और जिन्होंने बिल्कुल सुस्ती को ज़ाहिर किया और अडॉप्ट नहीं किया जी इस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम जो है वो हॉस्पिटल वाले देते थे, तो उनका जो है ये बॉडी वेट भी ज़्यादा हो गया और BMI भी ज़्यादा हो गया। जिस तरीके से जिस कैटेगरी के अंदर जो है ये मुख्तलिफ कैटेगरी वो मैन और वुमेन की कैटेगरी है, 20 साल की उम्र है और इस तरीके से उनका जो है रिकॉर्ड परसेंटेज के अंदर 20 से 25, 25 से 30 जो है वो BMI जो है इस तरीके से रिपोर्ट किया गया। तो सबसे कम जो है ये वाला जो है ये पहले BMI जो है वो ज़्यादा था जिन लोगों का उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, तो उनका BMI जो है वो कम होना शुरू हो गया, जिनका बहुत ज़्यादा था उनका उससे कम हुआ, और जिनका जो है वो कम था उन्होंने परहेज नहीं किया, प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, तो उनका BMI जो है वो ज़्यादा हो गया। इस तरीके से जो है जब BMI जो है वो ज़्यादा हो गया तो इस तरीके से उनकी जो है वो ओबेसिटी जो है वेट के साथ से बढ़ गई। इससे साबित होता है कि हमें जो है प्रोग्राम के मुताबिक मैनेजमेंट के मुताबिक लाइफस्टाइल को चेंज करके हुए हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए। प्रोग्राम के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक हमें सुबह दोपहर शाम का जो खाना टाइम टेबल के मुताबिक जो है खाना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें कोई भी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमें नुकसान देती है। तो इस तरीके से रिसर्च और प्रैक्टिस के अंदर जो है ये चीज़ें शामिल है। तो
इसमें कुछ जो है वो लिमिटेशन और जो है वो स्ट्रेंथ्स भी इसके अंदर जो है शामिल है जी, कि हमारे अंदर जो है ये 60 जो है वो एट स्ट्रेंथ ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन, इसमें जो है वो जिन लोगों को जो है आपने प्रोग्राम के मुताबिक डाइट दी तो उनके अंदर ताकत तवानाई और इसी तरीका से ये उनके अंदर जो है ग्रोथ का सिलसिला जारी रहा और वो आगे बढ़ते रहे और उनका वेट भी जो है वो गेन करते रहे और उनके साथ जो है वो उनकी हाइट भी गेन होती रही और एज फैक्टर भी उनका जो है बढ़ता रहा और इसी तरीका से जो है जिनका जो है ये चीजें जो है वो नहीं बढ़ी, उन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ली, प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने इस पे अमल नहीं किया, जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो हाइट के मुताबिक जो है ये ज़्यादा बढ़ता गया और उनको नुकसान जो है वो होता गया। इसके अलावा जो एडिशनली जो है ये हम इस BMI जो है among obese patient in the primary care, जब हम इनको जो है वो प्राइमरी केयर के अंदर जो है वो लेके गए और उसके बाद दोबारा जो है अभी इसको जो है हमने इनका जो है वो BMI मेजर किया तो वो पहले से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग भी हो गए और उनके अंदर जो इजाफा हुआ था वो भी कम हो गया, यानी कि वो वेट जो है उनका दोबारा जो है वो अपने नॉर्मल सतह पर आ गया और उनकी वेट मैनेजमेंट जो है वो हमने वेट मैनेजमेंट के मतलब जो है हमने उनको मुकम्मल एक्नॉलेजमेंट जो है दी, इस तरीके से जो है वो अपने वेट को दोबारा जो है ये अफेक्ट किया। इसी तरह से वेट लॉस के अंदर जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा शामिल था, तो बहुत से लोग जो है ऐसी डाइट को पसंद नहीं करते थे जिसमें बेकरी के आइटमें और दुबल चीज़ें जो है वो शामिल नहीं थी। कुछ लोग जो है शुगर खाने को ज़्यादा पसंद करते थे लेकिन उनको वही गुज़ार खानी पड़ती थी जो अगर प्रोग्राम डाइट थी, तो जब वो खाते थे तो इससे उनका वेट उनकी जो है वो, तो इस तरीका से जितनी भी जो है ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो यूके के अंदर जनरल के अंदर जो प्रैक्टिस जो है जारी रखी और इस तरीका से BMI रिकॉर्ड में जो है ये तब्दीलियां जो है वो आती रही। तो ये तब्दीलियां जो है वेट के साथ साथ जो है ये हाइट के अंदर और उनके जिस्म के अंदर और उनके जो है वो तमाम हार्मोन्स के अंदर और उनके जो है वो वर्किंग के अंदर भी आई, क्योंकि हर बंदे की वर्किंग मुख्तलिफ थी, किसी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता था और किसी को कम वर्क करना पड़ता था, इसलिए जिनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता था उनको जो है BMI उनकी जो कम हो गई और जिनको कम वर्क करना पड़ा उनका BMI इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हो गई, यानी कि वो मोटापे की तरफ ज़्यादा माइल हो गए। तो इस तरीका से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है वो आखिर में कंक्लूजन ये है, our finding is incident of the current non surgical obstetrics जो है treated with these strategies of the following achieved by the sustained weight of the loss of the majority of the obese patient। तो इस तरीका से जो है बहुत ज़्यादा ओबीज पेशेंट जो है वो अपनी खुराक को मेंटेन करके लाइफस्टाइल को मेंटेन करके अपनी वर्क को जो है वो ज़्यादा करके BMI जो कम कम करते हैं रिश्वत की उनको जो है हम रेड करके जो है उनके अंदर जो है रिंग डाल के उनका जो है ये स्टोमिक को बंद कर दें या उनके स्टोमिक का जो है जो डुडिनम का सुराख जो है वो कम कर दें, उससे बेहतर ये है कि हम उनको जो है नॉर्मल गज़ा दे के जो है और उनको गुजार कंट्रोल करके उनकी वर्जिश को ज़्यादा करके लाइफ स्टाइल को बेहतर करके हम जो है इस तरीके से जो है उनको हर तरीके से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने कंक्लूजन निकाला है जी आखिर में। तो रेफरेंसेस है सारे जो है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो है स्टडी जो है वो नॉर्मल है। तो सर्च एंड प्रैक्टिस की स्टडी जो है इस तरीके से हम जारी रखेंगे, तो एक आध दिन जो है हम इसको भी दे देंगे ताकि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जो है ये एक बेहतरीन चीज़ साबित हो, वो भी इस किस्म की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आज का रुझान है कि हर बंदा जो है वो स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा है, मोटापे से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो लाइफस्टाइल को बेहतर करने से मैनेजमेंट करने से जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया
اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے. ان کا جو ہے حسرت جمیع و صالحی صلو علیہ وآلہ، ان کی ہر چیز بہت پیاری ہے، ہر چیز بہت خوبصورت ہے. یعنی کہ دنیا کی خوبصورتی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو انسان کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کے حسن عمل کی خوبصورتی کو دیکھیں. اور حسن عمل جو ہے وہ بہترین خوبصورتی ہے. اور حسن جو ہے یہ چہرے سے نہیں ہوتا، حسن جو ہے وہ جسم سے نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اس کی کارکردگی سے ہوتا ہے. تو میں یہ جانتا ہوں کہ جس کی کارکردگی بہتر ہوگا، جو لوگوں سے اچھا سلوک کرے گا، تو وہ جو ہے بہترین معالج بھی ہوگا اور جو ہے بہترین جو ہے وہ چیزیں ہوگی. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر. تو آج کی کیس میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک بچہ آیا تو اب میں نے اس کو جو ہے یہ آتے ہی دیکھ لیا کہ یہ کمزور ہے، ڈائریا کا شکار ہے. تو ڈائریا کی میں نے وجہ جو ہے مجھے معلوم ہو گئی کہ پانی کی وجہ سے ہے. اور میں نے اس کے جو ہے یہ 1.5 سال کا بچہ تھا تو وہ کمزور انتہائی زیادہ تھا، بچی تھی. تو اس کے والد صاحب سے میں نے یہ کہا کہ اس کو کتنی دیر سے یہ پرابلم ہے. وہ کہتا ہے کہ تقریباً سال ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کی والدہ کا دودھ کیوں نہیں پلاتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ والدہ کا دودھ اس لیے نہیں پلایا اس نے کہ وہ 6 ماہ بعد دوبارہ پریگننٹ ہو گئی. تو یہ پرابلم ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہے کہ جب وہ 6 ماہ بعد ہی جو ہے اس نے جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی. تو اب پہلے بچے کا حق اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2.25 سال دودھ پلانے کا حکم دیا والدہ کو. تو جب جو ہے اس طریقہ سے جو ہے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو پہلے بچے بیچارے کا کیا قصور ہوتا ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے جو ہے یہ بغیر چیک کیے ہوئے ہم تقریباً 1.5 سال سے 6 سال 1 سال سے اس کا جو ہے علاج کروا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے آپ جیسا جو معالج کہیں نہیں ملا. تو آپ نے آتے ہی اس کو پہچان لیا. میں نے کہا بھی اس کی 4 چیزیں ہیں. مختلف انہوں نے دوائیاں اتنی زیادہ تھیلے میں دوائیاں تھی ان کے پاس، اور جو ہے تھیلے میں دوائیاں اور ساتھ 4 دودھ کے ڈبے. میں نے کہا بھی ان سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ نے صرف اور صرف جو ہے اس کو جو ہے بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ دینا. وہ اس کی جب میں نے کہا وہ اس وقت تو کسی چیز کی ایسی ضرورت ہوتی ہے. والدہ کے دودھ کے اندر ہر چیز، آئرن، پروٹین، ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو اس کا لیبل بدل بکری کا دودھ ہے. تو اگر بکری کا دودھ دستیاب نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو گائے کا دودھ دیں اور اس میں الائچی، سونف، پودینہ ڈال کے دیں. پھر بچہ جو ہے وہ الٹی بھی نہیں کرے گا اور اس طریقے سے جو ہے بچے کو جو ہے میں نے اس کو دوائی بھی دی وغیرہ، اور اس کو لکھ کے دیے کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ٹھیک کر دیں گے. اور صفائی کا جو فلٹر کی صفائی اس کا میں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ جائیے. اور اس کے بعد یہ والے فلیجل کے شربت اور ٹاپیزول کے شربت اور 20 جو ہے یہ کچھ شاشا دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی اس کا بیسک کاسٹ تو دور کرے بھائی. بیسک کاسٹ کو گرم اور یہ تیسرے نمبر کوئی بھی فلٹر شدہ بوائل کرنے سے مرتے ہیں نہیں. جب تک بچے کے انفیکشن آپ جو مرضی اس کو دیتے رہیں، نارمل فلورا کو آپ جتنا مرضی کل کرتے رہیں. 6 اینٹی بائیوٹک، توبہ استغفر اللہ، توبہ 6 اینٹی بائیوٹک کو آگومنٹن لکھ کے دے رہا ہے، کوئی سپلاکسر لکھ کے دے رہا ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک کے. کون سا یار تم نے ایسا جو ہے وہ بچے نے جرم کر دیا ایک سا اس کے والدین کا جرم ہے یہ سارا. تو وہ جا کے گائے کا دودھ لے کے آئے یا بکری کا دودھ لے کے آئے. جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کو عنوان لکھ رہا ہے، کوئی میڈی افوال لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے. بیچاروں کے پاس پورا تھیلا تھا
تو اس طریقہ سے میرے بھائیوں خیال کرے غذا کی کا خیال کرے، حوصلہ افزا جو ہے ان کو شفا، ہمیں بھی اسی کی مینجمنٹ میں چلنا چاہیے. تو ایسی غلطی جو ہے وہ والدین کو نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. بہت سے ایسے طریقے جو بار بار چھوڑ کے جو ہے وہ بہت سے آرٹیکل جو ہے بڑے پیارے پیارے آرٹیکل جنرل جو مجھے اکثر مصور ہوتے رہتے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے اگر یہ پوسٹ گریجویٹ چاہیے